Hi and welcome to our daily mains answer writing program day 14. Today's topic will be focused on the collegium system of the Supreme Court. Recently there has been an issue which was in news जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुछ अपॉइंटमेंट को लेके कौन सी मेथड फॉलो की जानी चाहिए उस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में जो जजेस होते हैं 5 जजेस होते हैं उनके बीच में जजेस के बीच में कुछ डिवीजन था ओवर द मेथड टू बी फॉलोड. So that is why we have picked up this issue for the purpose of mains answer writing today. Let's begin this question. Let's begin with our answer today. So our question today will be focused on collegium system. As I told you, the question today is the present system of collegium violates the principle of openness in the government system. Discuss in brief about collegium system and critically analyze the issues associated with it along with suggestions in order to improve it. So basically the question proposes a proposition, puts up a proposition that collegium की जो current system है working की वो कहीं ना कहीं system में जो transparency and openness है उसको block करती है. एंड इसी कंटेक्स्ट में वी नीड टू डिस्कस इन ब्रीफ कि कोलेजियन सिस्टम क्या होता है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज टू डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट कोलेजियन सिस्टम. देन बिगिंस द सेकेंड पार्ट जहाँ पे हमको इशू एनालाइज करना है कि व्हाट आर द issues associated with this collegium system. That is the second part of our question, and the third part relates to the suggestions which should be given, which we should give in order to address these issues associated with the collegium system. So we have three things to address in our answer. First is the collegium system क्या होता है, second what are the issues associated with this collegium system, and the third parts relate to the suggestions which we should give or the recommendation which should be implemented in order to resolve these issues. So let's start our answer. Our answer will follow the same method, the same three-way approach, that is the intro, body, conclusion. The intro में we will discuss about constitutional provision related to the appointment in Supreme Court and High Court, and what is collegium system related to the, how is collegium system related to those constitutional provision and how does it helps in appointment in Supreme Court and High Courts. The second parts relate to the body part. Body part में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द कोलेजियल सिस्टम जो है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था एंड व्हाट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. Then we will deal with the issues related to collegial system and the suggestions which have been asked in the question, and then lastly we will conclude our answer with some principled approach. So let's start our answer, that is intro, body, conclusion. Intro में you can either also start with collegium system, but the better way, the better look which is given in the answer is given with when we start with some kind of constitutional provision or ideal. ऑलवेज ट्राई टू फॉलो एन अप्रोच जिसमें हम इंट्रो स्टार्ट करते टाइम इंट्रो में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या शेड्यूल्स या प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनका स्टार्ट यूज़ करके स्टार्ट हम करें. दैट गिव्स अ वेरी बेटर गुड impression that we know the constitutional provision. We are going to become an officer, we are going to implement the constitution. So the first thing we need to follow always in our life is the Constitution of India, and that is why it becomes important that you mention the relevant constitutional articles wherever you can remember them or wherever you can use them. So let's start with the constitutional provision. There are two articles related to appointment of judges in Indian judiciary system, that is article 124 and article 217 to 17. Article 124 relates to the appointment of judges of Supreme Court who are appointed by President after consultation with such a number of judges of Supreme Court and of High Court as the President may deem necessary. Simply it is saying that Supreme Court के judges President appoint करता है in consultation with number of judges, in consultation with some judges, कुछ judges से consult करके जो President ने necessary deem करता है, जो President को लगता है they are necessary. एंड दैट नेसेसरी कितने होंगे ये कौन डिसाइड करता है, ये किसने डिसाइड करा है, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको अभी हम आगे देखेंगे. जस्ट फॉर कीपिंग इन माइंड, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग व्हाट आई टोल्ड यू. द सेकेंड आर्टिकल रिलेट्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ पे आर्टिकल 217 अप्लाई होता है. आर्टिकल 217 के अंडर में हाई कोर्ट के जो जजेस हैं दे शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CJI एंड द स्टेट गवर्नर, and in case of appointment of judge other than Chief Justice, the Chief Justice of High Court. So this
these article clearly gives an idea ki how the judges of Supreme Court and High Court are appointed. In both the cases, the judges are appointed by President, but in the case of Supreme Court, they are appointed in consultation with some of judges of Supreme Court itself, and under Article 217, the judges of High Court are appointed by President in consultation with the CJI and State Governor, and if there is appointment of Chief Justice of that High Court, then judges other than Chief Justice of the High Court, then the Chief Justice of High Court is also consulted. Now there is the one word which is common in both of this article, and that is consultation, and that is where the whole game lies related to collegium system. How? हम इसको अभी देखते हैं. Let's move on to our next part, that is collegium system. Collegium system is, what is collegium system? It is a system. Now we have moved on to our body part, जहाँ पे हम collegium system को define करना शुरू करते हैं. तो collegium system is a system of appointment and transfer of judges of Supreme Court and High Court. This is a system, as I told, is for appointment and transfer of judges of Supreme Court. ये सिस्टम कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर में या कोई लॉ के थ्रू नहीं बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम होते हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं कोर्ट के. हाई कोर्ट के कॉलेजियम में उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उन हाई कोर्ट के. इन कॉलेजियम सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इन कॉलेजियम सिस्टम का चीफ जस्टिस, ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम होता है, ये कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि किन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, आइदर बाय एलिवेशन फ्रॉम हाई कोर्ट और बाय प्रमोटिंग एनी लॉयर हु हैज fulfilled the prescribed qualification eligibility from the bar of Supreme Court. This is the method for implementing, this is the purpose of collegium system of Supreme Court for the appointment of Supreme Court judges. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज जिस हाई कोर्ट से एलिवेट कर रहा है जज को, उस हाई कोर्ट से बिलोंग करता हुआ जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट में, उससे भी कंसल्ट करता है. सो देयर इज कोलेजियम ऑफ 5 जजेस जिसमें CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, प्लस इस जज से कंसल्टेशन लेगा जो जज उसी हाई कोर्ट से बिलोंग करता है, सीनियर मोस्ट जज जो उसी हाई कोर्ट से बिलोंग करता है जहां से नेक्स्ट जज का नाम कंसिडर किया जा रहा है अपॉइंटमेंट के लिए. सिमिलरली देयर इज़ अ हाई कोर्ट कोलेजियम जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनका बना होता है. ये हाई कोर्ट में किसको नेक्स्ट जज बनाना है और किनको जज बनाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर जुडिशरी में से, उनमें से ये डिसाइड करता है. या फिर बार एंड बेंच जो होते हैं, जो लॉयर्स का बार होता है हाई कोर्ट में, उनमें से किसको एलिवेट करके जज बनाना है, इसकी रिकमेंडेशन देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट को. और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है टू अपॉइंट द जजेस फॉर दैट जजेस. सो ये यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम है एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ कोलेजियम सिस्टम. अगर कोई केस में किसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फॉर एग्जांपल इन जो 6 लोग हैं इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि किसी पर्टिकुलर जज को जज बनाया जाना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन को जज बनाया जाना चाहिए कि नहीं, देन द मेजॉरिटी व्यू जो है वो प्रिवेल करता है. यहाँ पे ये 1 के बारे में बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट अ वोटिंग पर्सन, दिस हिज वोट और हिज व्यू इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोलेजियम सिस्टम. ये जो डिसीजन होता है रिकमेंडेशन का कि इनको जज बनाना है, ये 5 लोग देते हैं. बट ये CJI के लिए इट इज़ नेसेसरी कि वो इस जज का जो उस हाई कोर्ट से बिलोंग करता है, सीनियर मोस्ट जज ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उससे कंसल्टेशन लेना इज़ मैंडेटरी. सो इस केस में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल करता है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मैंडेट करता है. हमने अभी आर्टिकल 124 और 217 में ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिस कंसल्टेशन इज मैंडेटरी विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी. दिस इज द कोलेजियम सिस्टम. ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. देन वी मूव ऑन टू अवर एवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम. ये कोलेजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में कैसे आया? तो इस कोलेजियम सिस्टम के एवोल्यूशन में 2 चीज़ें हैं विच शुड बी रिमेंबर्ड ऑलवेज. फर्स्ट इज़ ये बॉडी कितने मेंबर्स की बनी हुई है एंड कितने मेंबर्स इसमें होते हैं. And second is what is the meaning of consultation. There are always 2 things which is to be remembered in terms of this consultation mechanism or this collegium system. So first judges case 1981 में एक क्वेश्चन आया था कि क्या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट
का जो कोलेजियम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका रिकमेंड किया हुआ कैंडिडेट रिजेक्ट कर सकते हैं जज बनाने के लिए. सो फर्स्ट जजेस केस में इट वाज सेड कि यस, सुप्रीम कोर्ट सेड कि यस एग्जीक्यूटिव जो है इट इज़ प्राइम, इट इज़ अबव जुडिशरी एंड दे कैन बेसिकली रिजेक्ट द कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. उस टाइम देयर वाज नो कोलेजियम विच वाज इन एग्जिस्टेंस, ओनली CJI यूज्ड टू रिकमेंड द कैंडिडेट. देन सेकेंड जजेस केस आया 1993 में. वहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि ये जो कंसल्टेशन है, जो देखिए लुक गवर्नमेंट फर्स्ट जजेस केस के अकॉर्डिंग it is not mandatory for the government to appoint the judge recommended by Chief Justice of India, but it is mandatory for them to consult the Chief Justice of India. एक बार पूछना जरूर पड़ता है कि भाई किसको हम अपॉइंट करें, भले ही करें चाहे नहीं करें. सेकेंड जजेस केस में ये क्वेश्चन आया कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 124 217 में ये जो कंसल्टेशन वर्ड मेंशन किया गया है, ये कंसल्टेशन बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर कि नहीं है. मतलब ये कॉन्करेंस होना ज़रूरी है क्या सुप्रीम कोर्ट का कि हम इनको अपॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो करें कि नहीं. सो सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कोलेजियम सिस्टम बनाया जिसके अंदर में उन्होंने बोला कि यस CJI और 2 जज बैठेंगे मिलके और ये जो रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को वही फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यही फॉलो करना पड़ेगा. ये जो 2 जजेस हैं सेकंड जजेस केस में ये बोला कि ये 2 जजेस जो हैं ये CJI को रिकमेंड करेंगे कि इस कैंडिडेट को कर सकते हैं कि नहीं, एंड अल्टीमेटली CJI जो है वो रिकमेंड इनको करेगा कैंडिडेट. बट यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था कि प्रेसिडेंट को ये डाउट था कि ये जो नीचे वाले जजेस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई कैंडिडेट के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपॉइंट करने या नहीं करने के लिए, तो क्या वो CJI के ऊपर बाइंडिंग है. तो उसके लिए उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए थर्ड जजेस केस आया 1998 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि कोलेजियम जो है अब ये 2 जजेस का 3 जजेस का नहीं होगा इंक्लूडिंग CJI, इट विल बी ऑफ 5 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 जजेस का कॉम्बिनेशन, एक बेंच होगी इन 5 जजेस की मिला के इंक्लूडिंग CJI. एंड ये 4 जजेस जो रिकमेंडेशन देंगे CJI को और CJI भी उसमें अपना रिकमेंडेशन ऐड करेगा, ये 5 जो रिकमेंडेशन लेंगे मेजोरिटी व्यू से जो भी रिकमेंडेशन बनेगा, ये जो कोलेजियम सिस्टम है, ये जो 4 जजेस के जो व्यू होंगे जो CJI को दिए जाएंगे मेजोरिटी व्यू से, that will be binding over the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड ये रिकमेंडेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके कंसल्टेशन से बनाएगा, वो रिकमेंडेशन वो उनको करेंगे फॉरवर्ड किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. दिस वाज द थर्ड जजेस केसेस. एंड उन्होंने ये बोला कि ये जो कोलेजियम कंप्लीट कोलेजियम है, इसकी जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाएगी वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगी. दिस वाज द वर्किंग, दिस वाज हाउ collegium system was evolved. पहले there was singly a CJI only, then CJI along with 2 judges, 2 senior most judges started to decide और recommend government कि किसको जज अपॉइंट करना है. and then 1998 में थर्ड जजेस केस में it decided कि now the collegium will be made up of CJI and 4 senior most judges of India जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेंगे कैंडिडेट which will be binding over the government of India. This was the evolution of collegium system. एंड इस जजमेंट के बेस पे एक डॉक्यूमेंट इवॉल्व हुआ, एक डॉक्यूमेंट फ्रेम हुआ दोनों के बीच में, गवर्नमेंट और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जुडिशरी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ दैट इज़ नोन एज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसमें ये पूरी प्रोसीजर रिकमेंडेशन से अपॉइंटमेंट तक की कैसे कंडक्ट की जाएगी उसकी पूरी डिटेल्ड प्रोसीजर वहाँ पे उन्होंने पेपर पे राइट डाउन करी. सो ये MOP के अंदर में ऑल अपॉइंटमेंट्स ऐसा लिखा हुआ है कि ऑल अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी रिकमेंडेड बाय कोलेजियम, गवर्नमेंट खुद से कोई जज अपॉइंट नहीं कर सकती. एंड रिकमेंडेशन जो भी सेंड करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इट विल बी डन बाय लॉ मिनिस्टर एंड देन द प्राइम मिनिस्टर बिफोर एंडिंग अप प्रेसिडेंट. मतलब लॉ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर मतलब कैबिनेट या गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट विल डिसाइड कि हाँ ठीक है वो अप्रूव कर देगी, उसके बाद प्रेसिडेंट उनको जजेस को अपॉइंट करेगा. दिस वॉज द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. But there is one thing which you need to remember while we move forward and discuss other things here. इस पूरी प्रोसीजर के लिए कोई टाइमलाइन डिफाइंड नहीं है. टाइमलाइन किस चीज़ में, सुप्रीम कोर्ट को किसी पोजीशन के वैकेंट होने पर जजेस के कितने दिन के अंदर रिकमेंड कर देना चाहिए और रिकमेंडेशन मिलने के बाद गवर्नमेंट कितने दिन के अंदर उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दे. इन दोनों ही प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे कोई टाइमलाइन की लिमिट नहीं है. मतलब इनडेफिनेट भी वो चल सकता है, इनडेफिनेट भी रिकमेंडेशन पेंडिंग रखी जा सकती है गवर्नमेंट के पास.
So this is the basically a caveat, this is a flaw in the memorandum of procedure in appointment of Supreme Court and High Court judges. So let's move on to the next part of our answer, body part, that is issues. What are the issues in functioning of collegium system? First, this collegium system is not made by a constitutional under constitution or by a law. Neither it is a constitutional body, neither it is a statutory body, एंड दैट इज़ वाई को डिस्क्रिशन देता है जुडिशरी को कि वो किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके से अपॉइंट कर सकती है. एंड बेसिकली दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ मेरिट बेस्ड प्रिंसिपल, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा है कि कंसल्टेशन होना चाहिए, लेकिन कंसल्टेशन कोलेजियम से कैसे होना चाहिए वो मैकेनिज़्म कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो लॉ में. एंड दैट गिव्स अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड आर्बिट्रेरी पावर्स टू जुडिशियरी इन द होल अपॉइंटमेंट प्रोसेस. द सेकेंड इशू रिलेट्स टू नॉन ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट. This whole procedure of appointing of judges of Supreme Court and High Court by the collegium system occurs as a closed door affair. सारे जजेस जो हैं कोलेजियम सिस्टम के, ये क्लोज्ड डोर मीटिंग करते हैं, जिसमें जजेस प्रेस को अलाउ नहीं करते, कोई डिस्कशन अलाउ नहीं करते. जो भी डिस्कशन हुआ है उसका कोई रिटन मीटिंग्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं करते डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कि क्या डिस्कशन चला, कैसे डिस्कशन हुआ. वो वेबसाइट में ये ज़रूर पब्लिश करते हैं कि किस जज को अपॉइंट किया गया है अब सुप्रीम कोर्ट में, उन जज की क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरिट क्या है, केसेस की क्या हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री क्या है जजमेंट की. ये सारी चीज़ें वो करते हैं, डिस्क्लोज वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, बट दे डू नॉट डिस्क्लोज द मिनट्स और डिस्कशंस ऑफ द मीटिंग कि किसी पर्टिकुलर जज को क्यों अपॉइंट किया गया है, क्या उसका लॉजिक, क्या उसका बेसिस था अपॉइंटमेंट पे. सो देर इज़ नो पब्लिक नॉलेज कि ये कोलेजियम कब मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे डिसीजन लेता है. इन सब का कोई भी हिसाब, इन सब का कोई भी अकाउंट नहीं होता है. देन देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म. खुद पास्ट में कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पास्ट में कई रह चुके हैं, उन्होंने खुद इस बात को माना है, एक्सेप्ट किया है कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म होता है. जजेस जो हैं अपने क्लोज रिलेटिव्स को, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई फैमिलीज़ हैं, उनके मेंबर्स को जजेस अपॉइंट करती है, इवन इफ दे आर नॉट मेरिटोरियस एज कम्पेयर टू अदर पीपल. सिंस दिस मीटिंग इज़ होली अ क्लोज्ड डोर अफेयर्स, so we can never question कि why that particular judge has been appointed. Then there is lack of diversity. कोलेजियम सिस्टम का एक बेसिकली एक फ्लॉ जो होना चाहिए वो ये भी है कि हमारी जो बेंचेस हैं उनमें डाइवर्सिटी नहीं है. लुक, जैसे कि क्या होता है हमारे यहाँ जब एग्ज़ाम्स होती हैं, रिक्रूटमेंट होती हैं, ड्राइव होती हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होते हैं, तो वहाँ पे हर सेक्शन के लिए कुछ सीट्स रिज़र्व की जाती हैं आज की डेट में कि वुमेन के लिए इतनी सीट्स रिज़र्व हैं, SC ST माइनॉरिटीज़ के लिए इतनी सीट्स रिज़र्व हैं, और वो उनके बेसिस पे वो सीट्स फिल की जाती हैं. बट जजेस की अपॉइंटमेंट में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है. द कोलेजियम इज़ फ्री टू डिसाइड कि किसको बनाना है जज, किसको जज नहीं बनाना है. एंड उसका एक साइड इफ़ेक्ट वाला जो एक कंसिक्वेंस जिसको हम बोल सकते हैं वो ये है कि बेंच पे SC ST, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं, हाई कोर्ट में जितने भी जजेस हैं, टोटल उनको हम ऐड करें तो उसमें हम देखें तो वी विल फाइंड कि SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़ के जो जजेस हैं वो ग्रॉसली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं इन द कोलेजियम पिक्स. So this is one of another issue, that is lack of diversity. Then there is non-filling of vacancies. I just told you कि memorandum of procedure के अंदर में there is no timeline on within what time limit this procedure should be completed of appointment of judges. So उस कारण से इशू क्या आता है कि गवर्नमेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंड किया हुआ कोई जज अगर पसंद नहीं आ रहा है, जो उनकी पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, देन दे कीप द एप्लीकेशन, देन दे कीप द रिकमेंडेशन पेंडिंग, और वो वैकेंसी वहाँ पे बनी रहती है. उसी तरह कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जुडिशरी जो है, कोलेजियम जो है, इट इज़ नॉट रिकमेंडिंग कैंडिडेट्स इन अ टाइमली मैनर, जिससे हमें कैंडिडेट्स अप्रूव करने में प्रॉब्लम आ रही है टाइमली मैनर में. सो ये जो कन्फ्लिक्ट एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की चलती है, इसके कारण से पेंडेंसी ऑफ केसेस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में बहुत हाई है, इट इज़ मोर देन 2 करोड़. सो वो वहाँ पे पेंडेंसी बनी रहती है और वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है. देन देर इज़ सीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द कोलेजियम मेंबर्स. एज आई टोल्ड यू, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आज इशू में आया क्योंकि कोलेजियम सिस्टम में एक डिस्प्यूट, एक डिवाइड चल रहा था मेंबर्स के बीच में.
तो मेंबर्स के बीच में डिवाइड ये चल रहा था कि होता क्या है, जब एक सीजेआई जो है, नए सीजेआई का अनाउंसमेंट होता है, वो बाय कन्वेंशन नए सीजेआई का अनाउंसमेंट पुराने सीजेआई के रिटायरमेंट की डेट के अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बिफोर कर दिया जाता है। और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे ही नए जस्टिस का सीजेआई का अनाउंसमेंट होता है, वैसे ही कोलेजियम जो है, पुराने सीजेआई जो होने वाले हैं, पुराने इनकम्बेंट सीजेआई जो अभी करंट सीजेआई हैं, उनका कोलेजियम डिसॉल्व हो जाता है और उस कारण से वहाँ पे वैकेंसी जो है जजेस की बनी रहती है अंटिल न्यू सीजेआई कम्स इनटू द पावर। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो 1 महीने का पीरियड है, ये जस्टिस यू ललित अभी करेंटली जो जज हैं, इनका ये मानना था कि ये जो डिलेज़ हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जजेस बहुत टाइमली मैनर में हमारे यहाँ मतलब बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए आते हैं, और सीनियरिटी के कारण, रिटायरमेंट डेट पास में होने के कारण, और उस कारण से ऐसे कई बार होता है कि महीनों महीनों तक वैकेंसीज फुलफ़िल नहीं हो जाती, क्योंकि 1-1, 2-2 महीने तक कोलेजियम जो है एग्जिस्टिंग सीजेआई का, वो डिफंक्ट हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है जब तक नया सीजेआई पावर में ना आ पाए। सो उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये बोला था कि रेदर देन अगर हम कोलेजियम की मीटिंग नहीं कर पाते हैं, तो हम जिन जिन जजेस को रिकमेंडेशन दी गई है, जिन जिन जजेस के नाम रिकमेंड किए गए हैं नई अपॉइंटमेंट के लिए, उनकी फ़ाइल कोलेजियम के मेंबर्स सबको घुमा दें, एक बार रोटेट कर दें, एंड उनका जो है एक लेटर ले लें कि हम इनको रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं। सबका एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल लेटर वो अपना अटैच करके रिटर्न कर दे सीजेआई को कि ये हम इनको रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरह से। लेकिन 2 जजेस थे कोलेजियम के, 2 जजेस ने तो इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट कर लिया। 2 जजेस का कहना था कि नहीं, दिस प्रोसीजर इज़ नॉट गुड, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस शुड ऑलवेज बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन, म्यूचुअल डिस्कशन विच इज़ डन विद इन द क्लोज्ड डोर। आपस में बैठ के जब मिल के, जब सामने सामने डिस्कशन होता है, उसके बाद ही, उन डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन के बाद ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए, रेदर देन दिस फाइल रोटेशन और सर्कुलेशन मेथड विच वॉज बीइंग ट्राइड बाय जस्टिस यू ललित। तो ये जो है एक तरह से एक सीक्रेसी मेंटेन करने की एक प्रोसीजर जो है वो मेंटेन करने की, कहना चाहिए, कोशिश चल रही है, वो कंटिन्यूड रखी जाए। कुछ जजेस का ऐसा मानना है, एंड कुछ जजेस का कहना है कि इट शुड बी चेंज्ड। ये फाइल सर्कुलेशन वाला मेथड इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू मेक थिंग्स फास्टर, मूव थिंग्स फास्टर इन जुडिशरी। सो दिस इज़ अनदर इशू रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। यहीं पे कन्वेंशन वाला पॉइंट भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो दिस इज़ रिटन डाउन। सो देर इज़ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विच अकर्स विद इन कॉलेजियम मेंबर्स, जिसके कारण जो है डिस्प्यूट हो गया अगर, तो वो इशू रिजॉल्व नहीं होता और वो बेसिकली लिम्बो में चला जाता है, वो इंडेफिनिट पीरियड तक रिजॉल्व नहीं होता, और कुछ कन्वेंशंस के कारण भी डिलेज होते हैं कोलेजियम सिस्टम में फंक्शनिंग में, फास्ट ट्रैक होने में। सो ये हमने एक नेक्स्ट इशू डिस्कस कर लिया। देन लास्ट इशू इज़ कोलेजियम में कोई भी नॉन जज रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में देखा जाए तो ये कोलेजियम सिस्टम जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल जजेस ओनली, एंड देर इज़ नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और द लॉयर्स की जो बार होती है वहाँ से, या फिर कोई एमिनेंट स्पेशलिस्ट या ज्यूरिस्ट है, कोई लॉ में किसी ने स्कॉलर है, कोई डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर है, प्रोफेसर है, इन एकेडमिया है, यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इन ऑर्डर टू डेलिब्रेट ऑन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज, कि किस जज को अपॉइंट करना विल बी बेटर इन ऑर्डर टू मूव अवर जुडिशरी इन अ मोर बेटर लाइट, यू कैन से। सो ये रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण यहाँ पे इशू आता है। सो ये हमने इश्यूज़ देख लिए इसके कोलेजियम सिस्टम के साथ में। लेट्स मूव ऑन टू द वे फॉरवर्ड या सजेशंस जिसको हम बोलेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। सजेशन लिखेंगे या वे फॉरवर्ड लिखेंगे, इट इज़ वन इन द सेम थिंग। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में सजेशन भी पूछे गए थे। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट सुप्रीम कोर्ट फियर इज़ ऑलवेज इट्स इंडिपेंडेंस। अपनी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NJAC बिल जो था वो रिजेक्ट कर दिया था। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट बिल 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पास करा था पार्लियामेंट ने, जिसके अंदर में जुडिशरी अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंक्लूड करने के लिए प्रोविज़न डाला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। बट प्रॉब्लम इज़ कि ये रिजेक्ट करना इज़ ओके, आप judiciary is maintaining its independence by doing this and declaring this act unconstitutional, but what Supreme Court is not addressing is the issue of secrecy। जो closed door meeting चलती है जिसमें corruption, nepotism, favoritism, इन सब के issues आते हैं,
वो प्रोसीजर को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई मेथड अभी तक इवॉल्व नहीं कर रही है, उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रही है. So there should be a balance between independence and accountable. If Supreme Court, if judiciary is maintaining its independence, is taking steps to maintain its independence from government, it should at the same time be accountable to the public so that any person can question Supreme Court on why a particular person has been appointed as judge. This balance should be maintained by Supreme Court and judiciary between independence and accountability. So the real issue is not who appoint the judges, but the manner in which they are appointed. The manner in which judges are appointed should be clear, transparent and open to everyone, because judiciary is also part of government. Then judiciary के अंदर भी justice होना चाहिए. Judiciary, what judiciary prescribes to everyone is everyone should be promoted or given what they deserve. What anyone, justice is when you give someone what someone deserve. If you are unable to give that inside your judicial system itself, then you cannot preach the same thing to the rest of the country. So equality of opportunity and selection of judges में merit का criteria judiciary जब खुद अपनी system में implement करेगी तभी उसे it has the right that it should prescribe to the overall country, across the country, that justice should prevail. The third suggestion is reconsidering NJAC. Government or executive is part of government, judiciary alongside government, executive. So government and judiciary should work in collaboration, not in conflict. The more the conflict, the more will be the disturbance in the working of the government, functioning of the government. If there are members across the world, it is a trend. Across the world, India is one of the very few countries जहाँ पे judiciary अपनी appointment खुद करती है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट जो है पार्शियली या फिर कम्प्लीटली जजेस को अपॉइंट करती है. सो एनजीएसी को रिकमेंड करना चाहिए, उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव को भी अपना वॉइस रखने का चांस मिले कि हमको किसको जज बनाना चाहते हैं, किसको जज नहीं बनाना चाहते हैं, ऑन व्हाट बेसिस दिस शुड बी डन. एंड जुडिशरी शुड कोलैबोरेट विद एग्जीक्यूटिव टू फाइंड आउट द बेस्ट रिकमेंडेशन, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट जज, bring out the best talent which can give rulings, which can give reform court system in such a way that it provides justice in a fastest manner possible. Then gender diversity को promote करना. हमारी benches जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनमें फीमेल जजेस का proportion बहुत लो है. इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी proportion बहुत ज़्यादा खास नहीं है. less than 20%, 20 to 30% approximately judges are there across the country which are female in position in by gender. So basically ये जो gender, lack of gender diversity है हमारी benches में, that causes a lot of bad image और impression, because that do not show कि हमारा कोर्ट जो है वो inclusive है. gender stereotyping का एक issue आता है हमारे कोर्ट सिस्टम में. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है. 3 months बैक सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम ने 3 वुमेन जजेस को एलिवेट किया है एज सुप्रीम कोर्ट जज, एंड दैट इज़ अ गुड साइन. And in fact 2027 में we could see based on seniority that Justice B.V. Nagaratna, she is a female justice. There is a possibility कि 2027 में India could get its first Chief Justice of India in form of woman judge. So that is gender diversity को promote करने की सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है, and that should be continued. Then वैकेंसीज को जो फिल करने की प्रोसेस है, दैट इज़ कंटिन्यूस एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस, जिसमें एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. एंड उसमें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कितनी टाइम के अंदर हम वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करेंगे, सो दैट वैकेंसीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग ना रहे. एंड लास्टली, नाइदर जुडिशरी नॉर एग्जीक्यूटिव शुड सोली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एंड दैट इज़ वाई एक प्रोसेस, ये जो जुडिशल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने पे हमको फोकस करना चाहिए बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी विथ एडिक्वेट सेफगार्ड, जिसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी रहे और एग्जीक्यूटिव अपना वॉइस भी रख पाए. So these were all the suggestions which can be implemented in order to improve the working of the collegium system. Lastly, we move on to the conclusion. So conclusion में आपको यही separation of principle, separation of power वाला principle का use आप कर सकते हैं. That is the separation of power between judiciary and executive is the basic principle working in any democracy for the working of any successful democracy. Judiciary and executive जो हैं
they basically act as a checks, they basically constitute a system of checks and balances over each other, because if judiciary is overreaching its limit, judiciary is taking some excessive action, then government can pass an act in order to control the judgments of Supreme Court or judiciary, and government if taking some arbitrary executive action, then there is judiciary always present to defend or preserve the constitutional values by controlling the government. So this system of checks and balance will work most when both work in balance, when both collaborate with each other and both give each other the space required for everyone in order to implement a successful democracy. So we discussed we will revise this whole answer in short. We discussed the constitutional provision, that is the Article 124 and 217, which are related to the consultation provision for appointment of Supreme Court and High Court judges. Then we discussed the collegium system, that there is a combination, there is a group of some judges in Supreme Court and High Court which basically recommend or appoint the judges in the High Court and Supreme Court. Then we discussed the evolution of collegium system, in which we discussed the three cases related to the judicial collegium system, that is the first, second and third judges cases. And then we discussed the memorandum of procedure. Then we moved on to the issues related to the collegium system, like there is lack of transparency, there is closed door meeting, there is nepotism, favoritism. These are the issues related to collegium system. These were some of them. And then we moved on to the suggestions in order to rectify or correct these issues. And lastly we move on to the conclusion, जहाँ पे हमने separation of powers and checks and balances का system हमने discuss किया था. So these were issues related to the collegium system. I hope it is clear to you, and this issue is very important for the purpose of GS2 mains answer writing polity. I hope it is clear to you. Thank you for watching the video.